Yes, today we are starting with the new heading, and the new heading is the first. We'll see meaning of complex reaction. Complex reaction. Now, what is complex reaction? Complex reaction. The reaction which occurs in a multiple or series of steps. The reaction which occurs in a multiple or a series of steps. एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर यहाँ पे रिएक्शंस है 2NO2Cl in the gaseous state gives you 2NO2 gas plus Cl2 gas. 2NO2Cl gives you 2NO2 plus Cl2. This is a complex reaction. Now, why complex reaction? This is a complex reaction. Why complex reaction? Because this reaction occurs in multiple steps. Now, which step it occurs? The first step, NO2Cl dissociate to gives you NO2 and Cl, the first step. And second step, NO2Cl combine with Cl to gives you NO2 and Cl2. So, and if we add here again, Cl cancel. So, NO2Cl will get 2 NO2Cl, 2 NO2 and Cl2, because this Cl and this Cl get cancelled. So, basically, what is complex reaction? जो reactions multiple step or in a series of steps होगा, जो reaction multiple step or in a series of steps में होगा, are called as a complex reaction. तो अब यहाँ पे देखो 2NO2Cl है, 2NO2Cl क्या दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 2NO2 and Cl2 प्रोड्यूस कर रहा है, 2NO2Cl 2NO2 and Cl2 प्रोड्यूस कर रहा है, करेक्ट. बट ये जो रिएक्शन है दो स्टेप में कैसे हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में NO2Cl प्रोड्यूस कर रहा है NO2 and Cl, and second step में NO2Cl again reacting with the Cl, and what we are getting NO2Cl2, NO2 and Cl2, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स. सो बेसिकली व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है जो 2 और 3 स्टेप में होगा, उसे हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे. ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन. हॅलो सर. हाँ यस सर, तो दुसऱ्या रिएक्शन मधला सीएल कुठून आला की पहिल्या रिएक्शन मधलाच आहे? तो हा Cl म्हणतोस ना? हा सर. हा फर्स्ट स्टेप मधला आहे. तो नंतर हा कन्सेप्ट मी तुम्हाला परत नंतर समजावून सांगतो. आता फक्त मला एवढं सांगायचं होतं की ही जी रिएक्शन आहे दोन स्टेप मध्ये होते, आणि रिएक्शन दोन स्टेप मध्ये होते म्हणून याला काय म्हणतो आपण, कॉम्प्लेक्स म्हणतो, बरोबर आहे. हा Cl चा पार्ट मी पुढे एक्सप्लेन करणार आहे परत. हा सर, ठीक आहे. ओके, नाउ विल गो फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन. व्हाट इज एलिमेंटरी रिएक्शन? These reactions occur in a single step.
these reactions occur in a single step and cannot be broken. Cannot be broken down further into simpler reaction. What is element reaction? Those reaction which occurs in single step. मतलब रिएक्शन हमारा सिंगल स्टेप में ही होगा, सिंगल स्टेप में, उसका और मल्टीपल स्टेप पॉसिबल नहीं है. एंड cannot be broken down further any into simpler reaction. These reaction occur in a single step. These reaction occurs in a single step and cannot be broken down into a simpler reaction are called as a elementary reaction. Are called as a elementary reaction. Correct? तो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा और उसे आप और सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं, मतलब जो आपके पास है वही सिंपल फॉर्म है, आप उसे और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, उस रिएक्शन को क्या बोलना है? एलिमेंट्री बोलना है. एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल, ओजोन in the gaseous state gives you O2 in the gaseous state plus O in the gaseous state. Ozone in the gaseous state gives you O2 in the gaseous state plus O in the gaseous state. ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है. ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इस रिएक्शन को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. So they are called as a elementary reaction. ये हमारा elementary reaction, ये हमारा elementary. Correct? Then C2H5, second example, C2H5I in the gaseous state gives you C2H4, C2H4 in the gaseous state plus HI in the gaseous state. ये भी हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है. इक्वेशन देखो, बैलेंस है, कार्बन टू, हाइड्रोजन 5, 4 + 1 5, आयोडीन 1, करेक्ट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन टू आ रहा है, हाइड्रोजन 5, यहाँ पे 4 + 1 5 आ रहा है, आई यहाँ पे आई आ रहा है. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये भी हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, दोनों हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब इन रिएक्शन को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इन रिएक्शन को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए एलिमेंट्री रिएक्शन. तो एलिमेंट्री का मतलब, अगर हमें कोई बोलेगा इस रिएक्शन को और सिंपल फॉर्म में लिखो, तो इसे हम और सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते, बस यही सिंपल फॉर्म है, इसलिए उसको क्या बोलना है? एलिमेंट्री रिएक्शन. अगर कोई बोलेगा इस रिएक्शन को और सिंपल फॉर्म में लिखो, तो इस रिएक्शन को भी और सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते, और सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन. ये हमारा एलिमेंटरी रिएक्शन है. करेक्ट. सो दोज रिएक्शन व्हिच ऑकर्स इन अ सिंगल स्टेप, those reaction which occurs in a single step and cannot be broken down further into simpler reaction are called as what? Elementary reaction. तो ये हमारे elementary reactions. Correct. अभी now we'll go for the next setting. कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा था? एक रिएक्शन था, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा था, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स बोलोगे. सो दोज रिएक्शन व्हिच ऑकर इन मल्टीपल स्टेप आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स. और जो रिएक्शन एक ही स्टेप में ऑकर होगा, उसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, उसे आप क्या बोलोगे? एलिमेंट्री रिएक्शन, व्हिच इज कॉल्ड एज अ एलिमेंट्री रिएक्शन. ओके. सेकंड, molecularity of
reaction. Molecularity of reaction. Now molecularity of the reaction is what? Molecularity means what? Molecularity, first of all, molecularity concept is applicable to, molecularity concept is applicable to elementary reaction. Molecularity concept is applicable to only elementary reaction. Correct? Now what is that? The molecularity concept is applicable only to elementary reaction. Now what is this concept molecularity? The molecularity of an molecularity of an elementary reaction is the number of reactant molecules taking part in it. The molecularity of an elementary reaction is the number of reactant molecule taking part in it. How many molecules, how many reactant molecules are taking part in it? How many reactant are taking part in it? Correct? The molecularity of an elementary reaction is the number of reactant molecule taking part in it. मतलब कितने reactant molecule यहाँ पे part ले रहे हैं. तो देखो for example ozone gives you O2 plus O. How many molecule are taking? How many? This is ozone is a reactant. Ozone is a reactant, correct? Only one reactant is taking part, and because only one reactant is, see ये पहले सबसे पहले क्या है? Molecularity concept किससे applicable है? Molecularity concept is applicable only to which reaction? Molecularity concept is applicable only to elementary reaction. Elementary, correct? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है क्या? ये रिएक्शन एलिमेंट्री है. ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, करेक्ट? अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, ओके, तो यहाँ पे हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट आर देयर? वन. सो यूनिमॉलिक्यूलर, इट इज unimolecular. Now ozone is having only one molecule, and because ozone is having only one molecule, it is called as a unimolecular. It is called as a unimolecular. Then we are having here C2H5I. C2H5I gives you C2H4 gas plus HI gas. C2H5I gas plus gives you what? C2H4 plus HI gas. How many molecule of the reactant we are having over here? Only one. Because सबसे पहले क्या देखना है कि ये रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री है. ये रिएक्शन यहाँ पे एलिमेंट्री है. यस, एलिमेंट्री. इसे और सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो अगर एलिमेंट्री रहेगा तो हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल? ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. सो ओनली वन reactant, only one reactant molecule,
and because only one reactant molecule, it is called as unimolecular. It is called as a unimolecular. Only one reactant molecule is called as a unimolecular reaction. तो सबसे पहले क्या देखना है कि अगर हमें कोई भी रिएक्शन का मॉलिक्युलैरिटी चेक करना है तो सबसे पहले रिएक्शन कैसे होना चाहिए, एलिमेंट्री होना चाहिए. और अगर हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री रहेगा, तो इट इज विच रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. करेक्ट. देन second example, now next some more example we'll take. Ozone in the gaseous state plus oxygen in the gaseous state gives you 2O2. Ozone in the gaseous state plus oxygen in the gaseous state gives you what? 2O2. 2O2 in the gaseous state. Okay, so now here this is, सबसे पहले ये कौन सा reactions है, elementary reactions है. ये उन्होंने दिया है यहाँ पे कि ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है. अगर ये एलिमेंट्री रहेगा तो हम उसका मॉलिक्युलरिटी बोल सकते हैं. हाउ मेनी मॉलिक्यूल? वन ओजोन एंड वन ऑक्सीजन. वन ओजोन एंड वन ऑक्सीजन, सो इट इज कॉल्ड एज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन. Why bimolecular? Because one molecule of the ozone and one molecule of the oxygen, one molecule of the ozone and one molecule of oxygen are reacting with each other, so it is called as a bimolecular reaction. अगर और एक एग्जांपल लोगे यहाँ पे तो 2NO2 in the gaseous state gives you 2NO plus O2. 2NO in the gaseous state and O2 in the gaseous state. 2NO2 in the gaseous state and 2NO in the gaseous state gives you what? O2 in the gaseous state. Now here 2NO2. First of all, this is ये रिएक्शन और सिंपल फॉर्म में नहीं हो सकता है. और सिंपल फॉर्म में नहीं हो सकता है मतलब ये रिएक्शन कौन सा रहेगा? एलिमेंट्री रिएक्शन. ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो अगर हमारे एलिमेंट्री रिएक्शंस है तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन? 2 molecules are taking. So 2 reactant are taking part in the reaction. Because 2 are taking part in the reaction, it is called as a bi. It is called as a bimolecular reaction. 2 molecules of the reactant are taking part in it, so it is called as a bimolecular reaction. Correct? It is a bimolecular reaction. So what is molecularity? Molecularity concept पहले किसे applicable रहेगा? Elementary. हमारा reaction elementary होना चाहिए. और अगर हमारे पास एक ही reactant है तो it is called as a unimolecular. यहाँ पे भी एक ही reactant है तो it is called as a unimolecular. लेकिन अगर हमारे पास 2 reactant है तो it is called as a bimolecular. अगर हमारे पास 2 reactant है तो it is called as a bimolecular reaction. Correct? लेकिन मॉलिक्युलरिटी कंसेप्ट बताने के लिए सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि हमारा रिएक्शन कैसा रहेगा? एलिमेंट्री रहेगा. ओके, यस. तो सबको एलिमेंट्री का मीनिंग समझ में आ गया? किसी को डाउट है? नो सर. ओके, मॉलिक्युलरिटी का मीनिंग समझ में आ गया? मॉलिक्युलरिटी. ओके, ठीक है. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्डर एंड molecularity of elementary reactions. Order and molecularity of elementary reactions.
Now, what is the order and molecularity of the elementary reaction? First, suppose we take the example. Now we have to find out the order and molecularity of the reaction. Now, if you got the reaction 2NO2, 2NO2 in the gaseous state gives you 2NO plus O2. 2NO2 gives you 2NO plus O2. 2N, 2N. O2 2s are 4. O2 and O2s are 4, correct? Order and molecularity of elementary reaction. So सबसे पहले ये हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री है. एलिमेंट्री है मतलब इसे और सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते. ये हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री है मतलब इसे और सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते, करेक्ट? ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है. एलिमेंट्री लिखने के बाद यहाँ पे हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर? 2. तो इट इज बायमॉलिक्यूलर. इट इज विच रिएक्शन? बायमॉलिक्यूलर. अगर ये बायमॉलिक्यूलर है और अगर मुझे इसका भी रेट लिखना है, रेट, तो रेट इज इक्वल टू के. ये हमारा रिएक्टेंट है तो के इंटू NO2. एंड नॉर्मली हम लोग पावर यहाँ पे देख के नहीं लिखते तो वी राइट नॉर्मली हियर एज व्हाट? x. लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपको दिया हुआ रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर आपको मालूम है कि आपको दिया हुआ रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है और एलिमेंट्री रिएक्शंस अगर बायमॉलिक्यूलर है तो उसका पावर भी कितना आएगा? 2 आएगा. अगर हमारा दिया रिएक्शन एलिमेंट्री है तो हम लोग यहाँ पे नंबर 2 लिख सकते हैं यहाँ का कोएफिशिएंट देख के. लेकिन कभी नॉर्मली हम कोएफिशिएंट देख के यहाँ पे पावर नहीं लिखते. वी राइट द पावर हियर एज व्हाट? वी राइट द पावर हियर एज x. लेकिन अभी मैंने नंबर यहाँ पे 2 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मालूम है ये रिएक्शन कौन सा? एलिमेंट्री है. तो अगर हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री रहेगा तो उसका जो भी मॉलिक्यूलैरिटी रहेगा वो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पावर. तो ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट? अगेन आई विल एक्सप्लेन. यहाँ पे मैंने पावर 2 क्यों लिखा? क्योंकि मेरा रिएक्शन एलिमेंट्री था. मॉलिक्यूलैरिटी तो मुझे पता चला. तो सिंपल क्या है कि बायमॉलिक्यूलर हो या रेट हो, बायमॉलिक्यूलर डिसाइड करने के लिए, रेट फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन कैसा होना चाहिए? एलिमेंट्री होना चाहिए. दूसरा और एक एग्जांपल ले लो. C2H5I in the gaseous state gives you C2H4 gaseous state plus HI in the gaseous state. This is elementary reaction. This is elementary reaction. ये हमारा elementary reaction है, elementary है. अगर ये हमारा elementary reaction तो elementary का molecularity कितना? यहाँ पे एक ही molecule है तो it is unimolecular reaction. It is unimolecular reaction. Okay, it is unimolecular reaction. और unimolecular reaction अगर है तो क्या लिखोगे? rate is equal to K into concentration of C2H5I. Rate is equal to K into concentration of C2H5I. Rate is equal to K into concentration of C2H5I. ये रेट आएगा. तो यहाँ पे पावर 1 क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है. तो देखो सबसे पहले हमें मालूम था एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री में जो भी रहेगा मॉलिक्यूलैरिटी कौन सा है? यूनिमॉलिक्यूलर, इसलिए यहाँ पे पावर 1 लिखा, करेक्ट? मतलब अगर हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री रहेगा, तो एलिमेंट्री का क्या बोल सकते हो आप? मॉलिक्यूलैरिटी. और मॉलिक्यूलैरिटी से क्या लिख सकते हो आप? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. क्या लिख सकते हो? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. हेलो और सर. यहाँ पे ऊपर, हाँ यस सर ते प्रीवियस रिएक्शन आहे ना NO2 चा,
हाँ सर त्यामध्ये कोएफिशियंट 2 आहे म्हणून ते बायमॉलिक्युलर आहे का? हाँ हाँ, इथे कोएफिशिएंट 2 आहे ना, म्हणून म्हणजे बाय NO2 प्लस NO2 असं बोलू शकतो, दोन रिएक्टंट आहे. हा येस बरोबर, NO2 प्लस NO2 म्हणजे 2 वेळा NO2 आलं, बरोबर. ओके सर. म्हणजे जो बॅलन्सिंगचा नंबर असेल ना, जो बॅलन्सिंगचा नंबर असेल त्यालाच काय म्हणायचं, मॉलिक्युलॅरिटी म्हणायचं. मग ते 2 असेल तर 2 घ्यायचे, 3 असेल तर 3 घ्यायचे. म्हणजे जो बॅलन्सिंगचा नंबर आहे तोच त्याची काय असणार, मॉलिक्युलॅरिटी असणार, बाय मॉलिक्युलर. हो सर. करे. So what we have seen here, this reaction is bimolecular and second order, and this reaction is unimolecular and first order. So first one is bimolecular and for second order, second one is unimolecular and first order. concept समजला का रे हा बरोबर? हॅलो सर. आवाज कमी येतोय का आज? हॅलो सर. हा येतोय आवाज बरोबर? हा सर येतोय. सर ते मॉलिक्युलॅरिटी 3 असली तर मग काय लिहिणार? मॉलिक्युलर टर TER. हा सर ठीक. मॉलिक्युलॅरिटी 3 असेल तर काय लिहायचं, टर मॉलिक्युलर रिएक्शन TER. पण नॉर्मली कसं असतं, युनिमॉलिक्युलर आणि सेकंड बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन टर मॉलिक्युलर खूप कमी असतात. नॉर्मली युनिमॉलिक्युलर आणि बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन असतात, टर मॉलिक्युलर रिएक्शन खूप कमी असतात. 3 साठी टर लिहायचं, 4 साठी टेट्रा लिहायचं, पण ते नॉर्मली आपल्यासाठी नाहीये, टर आणि टेट्रा. हा सर ठीक आहे. Okay. Now we are going for the next heading. The next heading is rate determining step. The next is what? Rate determining step. Now what is rate determining step? See here. Again I will take the example. Consider, I'll write on the next page only. The heading is rate determining step. Rate determining step. Now what is here? I'll just write down here, consider a complex reaction. Consider a complex reaction. What is complex reaction? 2NO2Cl in the gaseous state gives you 2NO2. ये हमारा complex reaction. Now what is the meaning of the complex? ये reaction 2-3 steps में होगा. ये reaction complex है, इसका मतलब क्या हुआ? ये reaction और 2-3 steps में होगा. कौन कौन से steps में होगा? The first step, NO2Cl. First step, NO2Cl. Decompose, मतलब ये उसका constant है K1. Decompose into NO2 and Cl. ओके अभी यहाँ पे Cl फॉर्म हुआ है. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? NO2 ब्रेक डाउन हुआ. किसमें ब्रेक डाउन हुआ? NO2 एंड Cl. लेकिन यहाँ पे जो Cl ब्रेक डाउन हुआ है, दैट Cl विल अगेन रिएक्ट विथ NO2Cl. यहाँ पे जो Cl फॉर्म हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. ये फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो था. ये फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो था. स्लो मतलब इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर. ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, ये स्टेप कंप्लीट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए स्टेप स्लो है. सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? Cl फॉर्म हुआ था,
लेकिन Cl वापस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NO2Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ पे NO2 प्लस Cl2, और ये हमारा स्टेप फास्ट है। मतलब दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करोगे, तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो, मतलब इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर, और ये स्टेप बहुत फास्ट है, मतलब ये दोनों के कंपैरिजन में ये जल्दी खत्म हो रहा है और इसे खत्म होने में एक टाइम लग रहा है, स्लो एंड फास्ट। और वापस अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे Cl जो फॉर्म हुआ है और यहाँ पे Cl जो वापस रिएक्ट हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज Cl फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, तो Cl कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज ओवरऑल रिएक्शन, NO2Cl, NO2Cl, 2NO2Cl gives you NO2, NO2, 2NO2 and Cl2। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, दिस इज आवर ओवरऑल रिएक्शन। तो अभी कैसे देखा हम लोगों ने, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अभी सबसे पहले स्टेप 1 भी एलिमेंट्री है, स्टेप 2 भी एलिमेंट्री है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 बोथ आर elementary. Step 1 and step 2 are both are elementary. Okay, step 1 and step 2 both are elementary, दोनों elementary है। elementary का मतलब ये complex था, लेकिन अभी step 1 और simple form में नहीं, इसका यही simple form है। इस reaction को भी और simple form में नहीं लिख सकते, यही simple form है। मतलब step 1 भी elementary है, step 2 भी elementary है। तो अभी हमारा क्वेश्चन आएगा, इसका अगर मुझे रेट लिखना है, रेट, और स्टेप 1 में देखोगे तो ये रिएक्शन कौन सा रहेगा, यूनिमॉलिक्यूलर। स्टेप 1 इज यूनिमॉलिक्यूलर, स्टेप 2 इज बायमॉलिक्यूलर। स्टेप 1 यूनिमॉलिक्यूलर है बिकॉज ओनली वन रिएक्टेंट इज देयर। Step 2, 2 reactant are there, so it is bimolecular. Step 1 is unimolecular, step 2 is bimolecular. लेकिन अगर मुझे रेट लिखना है, रेट इज इक्वल टू K। अभी रिएक्शन के जब रेट लिखूंगा, रेट के लिए कोई एक ही इक्वेशन मुझे यूज करना है, या तो मुझे इक्वेशन 1 यूज करना है या तो मुझे इक्वेशन 2। मैं दोनों रेट नहीं लिख सकता हूँ, दोनों में से। देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, लेकिन दोनों में से मुझे कोई तो एक ही लेना है रेट लिखने के लिए। तो कौन सा लोगे, जो हमारा स्लो स्टेप्स रहेगा, स्लो स्टेप वो लेना है। तो ये स्लो स्टेप में ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl। ये हमारा इस रिएक्शन का रेट हुआ। मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, देखो यहाँ पे नंबर 2 है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नंबर 2 है, लेकिन आपने रेट क्या लिखा है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl। आपने ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, कौन से स्टेप से लेके लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स को लेके लिखा है क्या, नहीं, एलिमेंट्री को देख के लिखा है। लेकिन एलिमेंट्री में भी कौन सा एलिमेंट्री, स्लो। तो जो भी आपके एलिमेंट्री स्टेप रहेंगे उसमें से स्लो स्टेप कौन सा है, वो हमारा क्या डिसाइड करेगा, रेट। तो व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द स्लोएस्ट स्टेप in reaction mechanism, slowest step in the reaction mechanism decides the slowest steps in reaction mechanism decides the rate of reaction. Slowest step in the reaction mechanism decides the rate of reaction. Correct? ये हमारा rate of reaction decide करती है, slowest step, fast step नहीं। अगर इसीलिए अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा, आपने हैलोजन डेरिवेटिव किया है, हैलोजन डेरिवेटिव में आपने SN2 मैकेनिज्म किया है, या SN1 देखो, SN1 मैकेनिज्म किया है। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है,
SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है और वहां पे फर्स्ट स्टेप स्लो था और सेकेंड स्टेप फास्ट था। तो जब आपने वहां पे रेट लिखा था, रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि स्टेप 1 में खाली टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आइदर फ्रॉम द फ्रंट साइड और फ्रॉम द बैक साइड, बट सेकेंड स्टेप फास्ट है। इसलिए अगर आपको याद रहेगा SN1 में क्या लिखते हो, SN1 में लिखते हो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि वो जो स्टेप है वो हमारा स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करते, लेकिन वो स्टेप फास्ट है, तो इसलिए फास्ट स्टेप को यूज नहीं करना है, स्लो स्टेप को ही यूज करना है, स्लो स्टेप्स को ही यूज करना है। आ रहा है समझ में? देखो मतलब जब हम देखो, ये हमारा अगेन आई रिपीट, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 भी एलिमेंट्री है और स्टेप 2 भी एलिमेंट्री है। स्टेप 1 यूनिमोलिक्यूलर है, स्टेप 2 बाइमोलिक्यूलर है। लेकिन अगर मुझे रेट लिखना है, रेट, तो अभी एक, हाँ, अगर यहाँ पे एक ही रिएक्शन होता तो आई वुड हैव रिटन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl। अगर यहाँ पे यही रिएक्शन होता तो मैंने क्या लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl। लेकिन यहाँ पे दो स्टेप्स है, दो में से कौन सा स्टेप मुझे यूज करना है? दो में से मुझे यूज करना है स्लो स्टेप, हमेशा ध्यान। इसलिए जो हमारे मैकेनिज्म में स्लो स्टेप रहेगा, द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म डिसाइड्स द slowest step in the reaction mechanism decides the rate of reaction. So it is called as rate. It is called as rate determining step. It is called as a rate determining step. The slowest step is called as a rate determining step, correct? So what is rate determining step? The slowest step in the reaction mechanism decide the rate of reaction, and so it is called as the rate determining step. The slow step is the rate determining step. Slow step is the rate determining Hello, step. sir. Yes. Sir, overall reaction unimolecular असणार की बायमॉलिक्युलर? ओव्हरऑल कसं माहिती आहे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जर असेल ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जी आपण कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही बायमॉलिक्युलर आहे, पण आपण कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जी सांगत नाही युनिमॉलिक्युलॅरिटी. जर आपली रिएक्शन कॉम्प्लेक्स असेल तर ही बायमॉलिक्युलर आहे, पण आपण कॉम्प्लेक्स रिएक्शनची मॉलिक्युलॅरिटी सांगत नाही. आपण मॉलिक्युलॅरिटी कोणाची सांगू शकतो? फक्त की जर रिएक्शन एलिमेंटरी असेल तर. जर म्हणजे आपल्याकडे काय करायचंय, जर रिएक्शन एलिमेंटरी असेल तर तुम्ही त्याची मॉलिक्युलॅरिटी सांगू शकता, आणि जर तुम्ही त्याची मॉलिक्युलॅरिटी सांगू शकता म्हणजे ऑर्डर पण सांगू शकता, पण कॉम्प्लेक्स रिएक्शनची तुम्ही मॉलिक्युलॅरिटी सांगू शकत नाही. बरोबर? म्हणजे तशी माहिती ही बायोमॉलिक्युलर आहे, पण आपण कधी कोणी विचारत पण नाही आणि कोणी सांगत पण नाही. करेक्ट. Next, reaction intermediate. Reaction intermediate. Now, what is intermediate? The species which is formed in one step of mechanism and consumed in the
नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, मतलब जो स्पीसीज विच फॉर्म इन द वन स्टेप, मतलब एक स्टेप में फॉर्म होगा और कंज्यूम्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाएगा, आर कॉल्ड एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, आर कॉल्ड एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, बराबर है। तो जो स्पीसीज एक पार्ट में फॉर्म होगा दूसरे इसमें डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब एक अब सिंपल एग्जांपल ले लो, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, Cl फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, Cl NO2 Cl से क्या मिल रहा है, NO2 एंड Cl, तो Cl फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, और सेकेंड स्टेप में इमीडिएटली क्या हो रहा है, यूटिलाइज भी हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, सेकेंड स्टेप में यूटिलाइज हो रहा है, तो ओवरऑल में दिखाई देता है कि आपको नहीं, यहाँ पे ओवरऑल में आपको दिखाई नहीं देता है, मतलब व्हाट इज हियर, स्पीसीज which is formed in one step of mechanism and consume in the next step of the mechanism are called reaction intermediate. Okay, तो यहाँ पे क्या था, Cl था, जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Cl फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, Cl सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, मतलब यहाँ पे फॉर्म हो गया और यहाँ पे इमीडिएटली रिएक्ट भी कर दिया, रिएक्ट, तो इसलिए Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो Cl अगर चाहिए तो मैं वापस रिएक्शन लिख देता हूँ एक बार वापस, यहाँ पे देखो NO2Cl gives you NO2 and Cl, and second step NO2Cl combined with the Cl gives you NO2 and Cl2, अगर ऐड करोगे तो Cl and Cl get cancel, तो Cl फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन क्या आएगा, NO2Cl gives you 2 NO2 and Cl2, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, करेक्ट। और ओवरऑल में हमें Cl दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे ओवरऑल में Cl दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब द इंटररिएक्शन intermediate, reaction intermediate does not appear in overall reaction, मतलब हमें ओवरऑल रिएक्शन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप में है लेकिन फॉर्म हो रहा है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, यूज्ड हो रहा है, तो इसलिए कैंसिल हो गया, मतलब बचा ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट डज नॉट अपीयर इन ओवरऑल रिएक्शन, यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और हमें मालूम है ये हमारा स्लो स्टेप है, ये हमारा फास्ट स्टेप है, तो रेट कौन डिसाइड करेगा, स्लो स्टेप डिसाइड करेगा। तो व्हेन आई राइट रेट लॉ E1 it does not appear in रेट लॉ, E1 it does not appear in the rate law, मतलब अगर मैं ऐसा रेट लिखूंगा तो इसका रेट क्या आएगा, देखो इस रिएक्शन का, देखो ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, तो रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl, यहाँ पे Cl आ रहा है क्या, नहीं, या NO2Cl आ रहा है, क्या मैं रेट ऐसा लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू K NO2Cl इंटू Cl, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि ये स्टेप हमारा फास्ट है और फास्ट में जो रिएक्टेंट रहेगा उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, स्लो में जो रिएक्टेंट होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। जो रिएक्शन हमारा स्लो है उसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा,
जो हमारा फास्ट स्टेप है उसके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये हमारा रेट लॉस सही है बिकॉज स्टेप स्लो था, ये हमारा स्लो स्टेप का रिएक्टेंट था, लेकिन ये हमारे फास्ट स्टेप का रिएक्टेंट, तो ये सही नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट। तो इसलिए क्या लिखा रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, रिएक्शन इंटरमीडिएट डज नॉट अपीयर इन ओवरऑल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे हमें Cl नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, इवन इट डज नॉट अपीयर इन द रेट लॉ, हमें रेट लॉ में भी Cl नहीं, हाँ NO2Cl है, खाली Cl है क्या यहाँ पे, नहीं, तो इट डज नॉट अपीयर इवन इन द रेट लॉ। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। करेक्ट। अभी एक पॉइंट करेंगे हम लोग, डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे। द नेक्स्ट हेडिंग इज इसके ऊपर के न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड distinguish between order and molecularity. Order and molecularity. What is the first one? Order हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं? It is experimentally determined property, मतलब ऑर्डर हमेशा हम एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। और मॉलिक्यूलरिटी, इट इज, इक्वेशन देख के लिखते हैं, मॉलिक्यूलर हम लोग इक्वेशन देख के लिखते हैं, इट इज theoretical property. ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली, मतलब ऑर्डर हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलती है, इसलिए ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलरिटी इज अ थियोरेटिकल प्रॉपर्टी। ऑर्डर changes with experimental conditions, मतलब अगर हमने एक्सपेरिमेंट के कंडीशन अगर चेंज कर दिए, अगर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स के कंडीशन अगर चेंज कर दिए, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंजेस विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। मॉलिक्यूलरिटी does not change with molecularity does not change with experimental condition. Molecularity does not change with experimental condition. Correct. So order we calculate by performing an experiment. Order we calculate by performing an experiment, and molecularity is just by looking at the equation. अगर ये हम लोग एक्सपेरिमेंट देख के अगर परफॉर्म करते हैं, ये अगर हम एक्सपेरिमेंट देख के अगर परफॉर्म करते हैं, तो ऑर्डर will also change with the experimental conditions. But molecularity we just write by looking at the equation. So molecularity does not change with the experimental condition. Third, order may be integer, fraction, or zero. Order can be integer, मतलब +1, -1, +2, -2, fraction 1/2, 3/2, or it can be zero. Molecularity
is integer, मतलब मॉलिक्यूलर हमेशा कितना रहेगा, 1 यूनिमॉलिक्यूलर, 2 बायमॉलिक्यूलर, 3 टर्मॉलिक्यूलर, 1 unimolecular, bimolecular, termolecular. The molecularity is always going to be integer, but order can be integer 1, 2, -1, -2. It can be fractions or it can be 0. And the last definition of order, it is the sum of powers of the concentration terms of reactant it is the sum of the power of the concentration term on the reactant, those appear in the rate equation. आप जो रेट इक्वेशन लिखोगे, it is a sum of the power of the concentration term of the reactant, those appears in the rate equation, and here it is the number of reactant molecules taking part in an elementary reaction. It is the number of reactant molecule. It is the number of reactant molecule taking part in an elementary reaction. Correct? So how many reactant molecules are? देखो एक example देखो. यहाँ पे हम लोगों ने रेट लॉ लिखा, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर 1 है. अगर दूसरा और एक रिएक्टेंट होगा तो पावर 2 होता. तो दो भी रिएक्टेंट पावर हम लोग लेंगे तो ये पावर 1 है. तो इट इज द सम ऑफ द पावर. इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म. कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर लिखेंगे, पावर को हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, और पावर को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर. और मॉलिक्यूलरिटी क्या है देखो, कि जस्ट कि यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है, 1, तो यूनिमॉलिक्यूलर. यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं, 2, तो कौन सा आएगा, बाय मॉलिक्यूलर. मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. ये मॉलिक्यूलरिटी है. सो व्हाट इज ऑर्डर? इट इज द सम ऑफ द पावर. It is sum of the power of the concentration term of the reactant in the rate law. It is sum of the power of the concentration term of the reactant in the rate law, and it is the number of reactant molecule taking part in an elementary reaction. Correct? It is the number of reactant molecule taking part in an elementary reaction are called as the molecularity. Correct? So we have finished with this small topic. Numerical based on this topic, we'll do it in the next lecture. कोई डाउट आपको पूछना है? नो सर. ठीक है. I will make Vishnu sir as the host. हाँ चालेल सर, होस्ट करून द्या. होस्ट करो ना.